Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out page number 12. Equilibrium constant and its units. Equilibrium constant. What is equilibrium constant? It is the ratio of the product of the concentration of the product to the product of the concentration of the reactant at equilibrium state. Equilibrium constant, it is actually the ratio between the product of the product to the concentration of the reactant. Mean के concentration of product और concentration of reactant के दरमियान हमारे पास ये एक रेशो है. कैसी? हम जनरली रिएक्शंस के लिए जब लिखते हैं तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो लेते हैं, उनकी कंसंट्रेशन की रेशो. Equilibrium constant, I will explain equilibrium constant with the help of some general examples. Students, for equilibrium constant and its units, we take some general example. Example number first. Hydrogen and iodine react with one another, so they form hydrogen iodide. In this example, hydrogen and iodine chemically react with another and they form hydrogen iodide. Hydrogen and iodines are reactant and hydrogen iodide are product. When we write Kc for this reaction, so we take ratio of product concentration to the ratio of reactant concentration. अब इसके यूनिट्स की तरफ जब हम आते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास हर एक रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनिट है वो बेस होता है कंसंट्रेशन पे. आप लोग यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल है. अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि हमारे पास जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो. यहाँ पे देखें 1 से भी 2 और ये भी 2 है. हम जब इसके लिए यूनिट लिखते हैं तो यहाँ पे मैं लिखूँगी मोल पर डीएम क्यूब होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है. इसी तरह हाइड्रोजन के लिए मोल पर डीएम क्यूब, आयोडीन के लिए मोल पर डीएम क्यूब. मोल पर डीएम क्यूब जो है ये हम यूनिट्स लिख रहे हैं इनके लिए, प्रोडक्ट के लिए और रिएक्टेंट के लिए. अब यहाँ पे जो स्क्वायर था इसको ओपन करके हमारे पास क्या आएगा? मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब. नीचे भी इस तरह है हमारे पास, उसी तरह मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब. अब ये यूनिट्स जो हैं ये सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया? नो यूनिट. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हम क्या है, हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ऐसे रिएक्शन हो जिसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का सेम हो तो उसके लिए केसी के लिए फिर लास्ट में कोई भी यूनिट नहीं होता. The second possibility is when the product concentration is greater. For example, we have a reaction N2O4 2NO2. Look at here, this is 1 molecule and this is 2 molecule. So the product concentration is greater than the reactant concentration. When we write Kc for this reaction, so we take ratio of the product concentration to the reactant concentration. Write unit mole
per dm cube square, because here is square, and mole per dm cube. Kc equals to mole, स्क्वायर को ओपन करते हैं, पर डीएम क्यूब मॉल पर डीएम क्यूब, नीचे भी उसी तरह मॉल per dm cube. Now this unit is cancelled out with this and we left mole per dm cube. हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं mole dm cube. सो हमारे पास जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी वो क्या थी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से. सो Kc हैव अ स्पेसिफिक यूनिट. Now we have the third possibility when the reactant concentration is greater than the product. For example, N2 3H2. So this react together and form ammonia. Look at here. This is 1 molecule. This is 3 molecule and this is 2 molecule. When we add, so we get 4. It's mean that the concentration of the reactant site is greater. When we write Kc for this reaction, so we take ratio of the product concentration to the ratio of the reactant concentration. यहाँ पे आप लोग देखें ये 3 मॉलिक्यूल हैं तो इसलिए हम यहाँ पर क्यूब लगाएंगे. इसके बाद हम जब यूनिट लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, इसके लिए मैं 2 दफ़ा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है. मोल पर डीएम क्यूब, नीचे उसी तरह मोल पर डीएम क्यूब. हाइड्रोजन के लिए मैं मोल पर डीएम क्यूब 3 दफ़ा लिखूँगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यूब है. मोल पर डीएम क्यूब एंड मोल पर डीएम क्यूब. अब जितनी भी यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी. लास्ट में क्या रहेगा, मोल पर डीएम क्यूब मोल पर डीएम क्यूब. आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हो, मोल पर डीएम क्यूब होल स्क्वायर. स्क्वायर मीन कि ये 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा लिखने से अच्छा है हम एक ही दफ़ा लेके और उसका स्क्वायर ले लें. Okay student, today we discuss about chemic equilibrium constant and its units. What is equilibrium constant? It is the ratio of the product of the concentration of the product to the product of the concentration of the reactant. अब यूनिट्स के लिए हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लेन कर ली. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर हमारे पास ऐसे रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो तो Kc के लिए कोई भी यूनिट नहीं होगा. दूसरी जो पॉसिबिलिटी थी वो थी कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ग्रेटर हो रिएक्टेंट से तो Kc के लिए हमारे पास स्पेसिफिक यूनिट आएगा. इसी तरह फिर थर्ड पॉसिबिलिटी जो थी उसमें था कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट लेस हो और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो भी हमारे पास Kc के लिए कोई भी स्पेसिफिक यूनिट होगा. इसलिए हमने आज क्या पढ़ा कि हमारे पास हर एक रिएक्शन में Kc के लिए अपने स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं. Okay students, we discuss about possibilities के हमारे पास हर एक रिएक्शन में Kc के लिए अपनी स्पेसिफिक यूनिट होते हैं. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़. अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा.